Welcome, everybody. Welcome, distinguished guests, the Honorable President of Pakistan, Dr. Arif Alvi, the Chief of the Army Staff General Qamar Javed Bajwa, and the Chairman PCB, Mr. Ramiz Raja. Well, of course, on behalf of myself, Sikandar, and my co-host Zainab, we welcome you all. It's lovely to see so many familiar faces, to relive some moments of the year 2022 that Pakistan cricket team has lived through. हमने हमेशा देखा है कि क्रिकेट एक ऐसी बाइंडिंग फोर्स है हमारे मुल्क में कि जब टीम मैदान में उतरती है तो आप किसी भी खित्ते से हो पाकिस्तान के कोई भी ज़बान बोलते हो आप यूनाइट हो जाते हैं उस एक झंडे के नीचे. पूरा साल देखा जाए तो हर जगह कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस रही हैं, टीम परफॉर्मेंसेस देखी हैं हमने. फाइनल के अलावा नेदरलैंड से स्टार्ट हुई कहानी, उसके बाद ट्राई सीरीज न्यूजीलैंड में पाकिस्तान जीता, देन दैट amazing match against India last year, Asia Cup, let's not forget Asia Cup. I feel overall एक growth नज़र आ रही है पाकिस्तान cricket team की, and not just in one particular format, even एक वो जैसे कहते हैं ना fighting spirit, हार जीत होती रहती है but fighting spirit is what's most crucial. Thing is that they never give up. जो fighting spirit है वो ज़रूरी है चाहे वो आप किसी भी field में हो, and you learn a thing or two from these young men. And because we're talking about support, so I think it's only fair to call upon the chairman of the Pakistan Cricket Board, Mr. Ramiz Raja, to come forward and say a few words. Good evening, ladies and gentlemen. President Saab, COAS Saab, dignitaries, excellencies. I see a very, very impressive spread of guests here, which tells me that cricket has arrived because we've come a long way since last year and a half, and to see such august gathering makes me extremely happy. So congratulations to Babar Azam and his team because they've been the real winners. My special thanks to all the ex-cricketers who are here for the evening, to the media, to our commercial partners, and before I forget, to the PCB team, because this really has been one punishing year in terms of setting up the show. So we've hosted Australia, we've hosted England. This is our A season for, I don't know, last 30 years. So congrats and well done to the PCB team for making it happen. If we get going and look at the statistical data, and the first time we had 3 Pakistani cricketers who were nominated by the ICC as the best 3 players. So the drama started then. Special regards and thanks to you, Babar, because you've been a great ambassador for Pakistan cricket on and off the field. His maturity is far beyond his age. So he can take a lot of pressure, he can take a lot of criticism, at times unruly criticism, but he keeps his head down, he's grounded, he lets his bat do the talking like the rest of the team, and I'm so proud of how this team has handled criticism as well as great moments. After this, obviously, there is the England series, which is going to be a real test for our boys, and it's good that we'll be playing Christian Turner's team, who's the ambassador for England. I just want you to know, Babar, that, just do your best on the field. We know that we are quite capable of beating England. And once you beat them, then you let them also know that how important it is for England to sample our Pakistani cuisine, right? So, because they've got the English chef coming in all the way from England, so we're going to make sure that the food doesn't taste that good for them. So there are quite a few achievements, but I just want to remind our cricket team once again that silverware matters. Winning does matter, and so we're getting there. We're playing the finals, and this really has been a tremendous season. We've played the final of the Asia Cup, we've played the final of the World Cup, so that's great going, and so now beating England is the next target, and let's hope that you do well. Even if you don't win, I'll not crib at all. I know I've played the game, so just try your best. And I hope that it's an enjoyable series, and thank you once again. Thank you.
Mr. Chairman, we would like you to stay for a while. Few more questions that we have, and I'm sure I'll be representing lots of people who watch the game and who love the game. जो हम बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट का एक सर्टन स्टाइल तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो फाइटिंग बैक करने का किसी एक इवेंट में नेचर है. You being a former cricketer yourself, and lots of comparisons were made of '92 and this World Cup. क्या है वो spark, क्या है वो energy पाकिस्तान टीम की, चाहे वो किसी भी decade की हो, that they fight back? And I'm asking you that question as a former cricketer. देखिए सिकंदर, इस टीम की जो सबसे अच्छी बात ये है कि चाहे ये जीतते हैं या हारते हैं, ये ग्राउंडेड रहते हैं और हार से सीखते भी और हार से इकट्ठे रहते हैं. आई थिंक जो बाबर आजम की एक और ग्रेट अचीवमेंट यही है कि जब हम हारते हैं, और ये हमारे दौर में होता था और हर क्रिकेट टीम के दौर में होता है कि ड्रेसिंग रूम में तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है, क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है, आप अपने आप को सेकंड गेस करना शुरू कर देते हैं. इस टीम ने ऐसा नहीं किया है. सो उसे लर्न किया और आगे बढ़े हैं. और एज ए क्रिकेट बोर्ड हमारा काम ये है कि उनको फैसिलिटेट करें विद एन एक्सीलेंट एनवायरनमेंट. ऑफ कोर्स टीम तो यहाँ पे है, बट लाइक वीव सीन पीजेएल पाकिस्तान जूनियर लीग आई है, उसके अलावा कॉर्पोरेट पार्टनरशिप्स बहुत सी हुई हैं, इन्वेस्टिंग इन द ग्रास रूट्स लेवल. सो I know this is something very passionate for you. तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं. So when I took over as the chairman of the board, I felt that obviously the board needed to have a vision and pillars to stand firm. So the three pillars that I felt were very, very critical to the cause was the cricket excellence, commercial excellence, and administration excellence. Ever since we beat India actually in the last T20 World Cup, I think our cricket economy has absolutely grown. Everyone wants to now park the money in our cricket system, which is great. And thanks again to this cricket team because they've made it for us. But there are still things to do. We had record profits for PSL. We had record sponsorships. And moving forward, I think, let me quote this again because I know the neighbors don't like it because I was told that it's a very, very unfair comment, but it is a reality that we have beaten twice in last 12 months $1 billion economy, cricket economy, and that is no mean achievement. Are you watching as a former cricketer, as a commentator, or as a chairman? How do you differentiate that? मत पूछे, मैं जाना छोड़ दिया. मैं 2 दफ़ा गया हूँ और मुझसे ना जब ये जीत रहे होते देखा जाता है, ना हारे होते तो बिल्कुल नहीं देखा जाता, इसलिए कि राइट लेफ्ट पे जो लोग बैठे होते हैं वो भाग जाते हैं. सो इसका एक अलग टेम्परामेंट है मैच देखने का भी. बट मुझे इन्होंने पूरी तरह से एंगेज कर दिया हुआ है. सो पूरी नमाज़ें अब मैं पढ़ता हूँ जब ये खेल रहे होते हैं. मैं पूरा इस्लामी बन गया हूँ. मैं स्पिरिचुअलिज्म पे बिलीव करना शुरू कर दिया है. सो जब ये इस तरह से हो जाए कि आपकी सांस ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे और ये खुशी प्रोवाइड करते हैं और उनको एक कमेंट करने का मौका देते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है और इनकी वजह से हुआ ये. Thank you so much. And thank you so much. Thank you. A Chairman. huge round of applause. We're talking about dignitaries. So the Chief of Army Staff, Qamar Javed Bajwa Saab, is here as well. And we know that he is a huge, huge cricket fan. Sir, thank you for joining us. Obviously, आप follow करते हैं cricket को, इतना closely देखते हैं, तो कौन सी ऐसी performance या जीत जिसको आपने बहुत personally enjoy किया हो? एक तो वो जैसे रमीज राजा साहब ने बताया, जो इंडिया से हम जीते, एक जिंक्स टूटा कि वर्ल्ड कप में, वो मेरा बेटा मुझे हमेशा कहता था कि आज तक वर्ल्ड कप में हम जीते नहीं हैं. तो जब वर्ल्ड कप में हम जीते शारजा में, तो दैट वाज समथिंग वेरी गुड. और फिर दोबारा उनको हराया हमने. और अभी भी अपना उधर ऑस्ट्रेलिया में भी बड़े क्लोज मार्जिन से हारे. तो अभी एक ज़माना था कि हम जिस वक्त राजा साहब खेलते थे तो उस ज़माने में इंडिया को हम हर मैच में हरा दिया करते थे. फिर एक ज़माना आया कि हमने हर मैच हारना शुरू कर दिया. अब दोबारा से हमारी टीम खड़ी हो गई है, माशाल्लाह, they are doing very well. So many players are here and they're all very promising. But आपको कोई individual performance या कोई ऐसा player जिसको आपने देखा और कहा हाँ ये इसके अंदर बहुत potential है? ये बड़ा मुश्किल सवाल है बिकॉज एक का नाम लूँगा तो बाकी नाराज़ हो जाएंगे. बाबर इज़ वेरी गुड, रिजवान इज़ वेरी गुड, लेकिन मेरा ख्याल है 2020 के लिहाज से शादाब इज़ वेरी गुड बिकॉज ही इज़ अ कंप्लीट ऑलराउंडर. थैंक यू कहना चाहेंगे शादाब? थैंक यू सर, थैंक यू. लेकिन जिम्बाब्वे का मैच भी इन्होंने हरवाया. छक्का मारने के बाद अगले बॉल पे हिट मारने की जरूरत नहीं थी. सर वही कुदरत का निज़ाम है, मैं आउट हुआ तो फाइनल में पहुंचे. कभी हम डायरेक्ट भी फाइनल में पहुंच सकते हैं कभी.
Acha, one more thing. Obviously, you know, we talk about leadership, and that's your forte. यहाँ पे बाबर बैठे हुए हैं, पूरी टीम है. So, any message for the team in that regard, leadership skills के हवाले से, या anything that you'd like to say to everyone that is sitting here in that regard? लीडरशिप का काम है लड़ाना, हार जीत होती रहती है. लीडरशिप के दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो डिफ़िकल्ट डिसीजन लेना. अगर डिसीजन ठीक हो जाए तो कोई बात नहीं है, गलत हो जाए तो उसको एक्सेप्ट करना. दैट इज़ द ग्रेट क्वालिटी ऑफ अ लीडर. जो लीडर अपनी गलती मान नहीं सकता, एक्सेप्ट नहीं कर सकता, वो लीडर नहीं बनता. टीम को लड़ाना लीडर का काम है. देखिए 137 स्कोर कोई था ही नहीं, इंडिया 160 करीब पहुंचा है और वो 10 विकेटों से हार गया. देयर वाज वन साइडेड मैच. इन्होंने इस फाइनल को बना दिया था. मेरे ख्याल में वी वेरी वेरी क्लोज. अगर वो मेरे ख्याल से शाहीन जख्मी ना होता तो शायद मैच बन जाता. तो आई थिंक लीडरशिप, फाइटिंग, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, that should be the quality of a leader. Okay, thank you so much. Please, round of applause for sir. Ji Sikandar. जी, leadership की बात हो रही है. So of course I'll take this opportunity to request and invite the Honorable President of the Islamic Republic of Pakistan, Dr. Arif Alvi Sahab. Please join us on the stage and. बहुत शुक्रिया. Thank you very much, Pakistan cricket team. आप मेरे हीरोज़ हैं. आई हैव नो डाउट, हमेशा फॉलो किया. आप मेरे हीरोज़ हैं. और जो लुत्फ़ आप पहुंचाते हैं कौम को, जिस अंदाज से और जिस तरह से खेलते हैं कि दिल भी धड़कता रहता है, डर भी लगता है कि भाई अब ये शॉट क्यों खेला, भाई इसकी ज़रूरत तो नहीं थी ना. मगर ये चेयर साइड कमेंटेटर्स हम सब हैं, मगर ये कि जितना आपने प्लेजर दिया और ये कि कैफियत के जिस तरह से किस्मत ने साथ देकर दोबारा आपको फाइनल में पहुंचा दिया. मैं अभी रमीज से पूछ रहा था, मेरा ख्याल ये है, अपना भी मैं भी एक कमेंटेटर, स्पेशलिस्ट कमेंटेटर हूँ. ये नहीं, यहाँ नहीं होता तो वहाँ होता कम से कम. तो मैंने रमीज से भी ये पूछा कि ये बताओ कि टॉस हारने से 15 रन का तो फ़र्क पड़ा होगा, बिकॉज हमारे बैट्समैन को विकेट का अंदाज़ा होते होते शुरू के 30-40 रन्स के बाद अंदाज़ा भी हुआ, ट्राइंग टू स्कोर फास्ट एंड नॉट द विकेट वाज स्लो, रिलेटिवली स्लो. तो लिहाजा सारा पाकिस्तान जो है क्रिकेट एक्सपर्ट है ये. और दूसरे ये कि मैं समझता हूँ कि जिस तरह से आपने लीडरशिप दिखाई, दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, कि हारने के बावजूद, जब हारे भी उसके बाद भी आप एक दूसरे को मोटिवेट करते रहे. मैं समझता हूँ सबसे बड़ी चीज़ ये होती है. एंड देयरफॉर द फैक्ट दैट पाकिस्तान की टीम एक दुनिया के अंदर हमेशा से चर्चा ये होता था कि अनप्रेडिक्टेबल सी है, ये ख़राब परफॉर्मेंस के बाद एक ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दिखाते हैं. दैट्स व्हाट यू हैव शोन ऑल द टाइम. एंड द फैक्ट दैट रमीज़ मेंशंस द फैक्ट कि आप 26, एवरेज एज आपकी 26 है. द टीम इज़ स्टिल बिल्डिंग एंड आई होप पाकिस्तान के अंदर तो इसकी पॉपुलैरिटी ट्रिमेंडस है. जो लोग हमें इग्नोर करते थे, वो रमीज़ ने कहा ना कि $1 बिलियन क्रिकेट इकानमी को हमने हरा कर दिखा दिया है. डिस्पाइट लिमिटेशन ऑफ फंड्स, डिस्पाइट लेसर नंबर ऑफ गेम्स, उसके बावजूद जनाब सब हीरोज़ हैं. एक एक का नाम ले सकता हूँ. जब बॉलिंग करने आते हैं तब मुझे अच्छा मज़ा आता है. शादाब आपका, द फास्ट बॉलर्स यहाँ सब बैठे हुए हैं, जिस तरह से आप विकेट उखेड़ देते हैं ना, इट रिमाइंड्स मी ऑफ वसीम अकरम्स 2 बॉल्स. तो जो आपने अपलिफ्ट किया पाकिस्तान को है, उसमें जितनी आपको दुआएं मिली और जिसमें इतनी आपने खुशियाँ बिखेरी हैं, तो मैं समझता हूँ द कंट्री ओज इट टू यू यंग मैन. थैंक यू वेरी मच. हम भी यही उम्मीद करते हैं कि और भी इसी तरह पाकिस्तान जो है जीता रहे. तो सिकंदर कोई चूज करें रैंडमली, आप किसको यहाँ पे बुलाना चाहते हैं? अगर ये आ सकते हैं स्टेज तक शाहीन, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा. शाहीन शाह आफरीदी, आपकी तालियों में. मेरा ख्याल से शादाब का नाम बार बार हर कोई ले रहा है, तो बुलाना ही चाहिए. शादाब आ जाएं प्लीज. एंड ऑफ कोर्स द कैप्टन बाबर आजम. Babar, I'm going to start with you, of course. You know, you're the captain. तीनों formats के captain आसान नहीं होता. You know, different formats हैं, different leadership skills. मैं ज़्यादा cricket की analysis में मेरा ख्याल है नहीं जाएं तो बेहतर है, because people want to hear about other things. You know, a little bit more about you. So, is there a preference of format जो आप enjoy करते हैं? Test cricket, T20s या ODIs में? First of all, अस्सलाम वालेकुम सबको. और देखें, पहले तो ऑनर की बात है, आप अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और जिस तरह आप पूरी कौम को लीड करते हैं, मेरे लिए काफ़ी ऑनर की बात है. और जिस तरह टीम रिस्पांस करती है और जिस तरह मेरे जितने भी कोलीग्स हैं वो जिस तरह रिस्पांस करते हैं और 100% देते हैं,
मैं एज ए कप्तान हर फॉर्मेट इंजॉय करता हूँ क्योंकि मेरी टीम इतनी अच्छी है कि मुझे किसी भी टाइम पे स्ट्रेस नहीं आने देती। देते हैं स्ट्रेस कभी कभार। शादाब कुछ कहना चाह रहा है मेरे ख्याल से। बताना थोड़ी है वो मेरा काम स्ट्रेस लेना, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जितना इनको रिलैक्स रखूँ, जितना इनको कॉन्फिडेंस दूँ, उतना मेरी टीम के लिए अच्छा और पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा। ठीक है सिकंदर। मैंने 2-3 सवाल रखे थे इनकी नी के लिए कि क्यों साथ छोड़ दिया उन्होंने, 2-3 ओवर की और अभी तो बात दूसरा थी। भी आ दूसरा भी आ गया। शाहीन, एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी होती हैं ऑफ कोर्स, जब आप ऐसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं एज एन इंडिविजुअल एक सर्टन प्रेशर होता है, लेकिन जो जर्नी आपकी रही थ्रू इंजरी एंड कमिंग बैक और इतनी जल्दी हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट में आना, परफॉर्म करना, और हमें नजर आया पहले मैच से लेके लास्ट मैच तक जो आपने ग्रेजुअल राइज था, रन अस थ्रू, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की, आर यू फिट, आर यू नॉट फिट, ऑफ कोर्स जिसको इंजरी है उसको ज़्यादा पता है। सो जस्ट टेल अस एग्जैक्टली किस तरह से आपकी जर्नी रही। मैं वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले थैंक यू एवरीवन और अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक इजी नहीं होता, जो फास्ट बॉलर है उसको ज़्यादा पता होगा कि नहीं कैसी मुश्किल होती है इंजरी। आई थिंक मेरा यही गोल था, और जैसे टीम थ्रू आउट सपोर्ट करती है, इवन मैं खेलता हूँ या नहीं खेलता, थ्रू आउट मुझे सपोर्ट करती है। मेरा यही था कि यार अगर मैं सीरीज़ के लिए फ़िट नहीं हो रहा हूँ तो मैं फुली कोशिश करूँगा, अगर मैं हाफ फिट भी हूँ तो फिर भी मैं जाऊँ वर्ल्ड कप के लिए। तो ऑफ कोर्स अभी उनसे किसी ने पूछा भी था कि शाहीन आप अभी आपका ऑपरेशन हुआ है तो आपके तो कुछ दिन ही हो गए। तो मैंने कहा मैं जब टीम के साथ होता हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ठीक हूँ, तो आई फील, और मैं फील अच्छा करता हूँ, 100% फील करता हूँ। तो आई थिंक टीम को ज़रूरत भी थी, और मेरा यही था कि वर्ल्ड कप के लिए फुली फिट आऊँ। आपको टाइम लगता है 2-3 मैचों में, रिदम वैसे नहीं आ रहा था, बट स्लोली आ रहा था। तो आई थिंक फिर आखिरी मैच में टाइम ऐसा आया कि कोशिश कर रहा था कि खेलूं, बट नहीं, वैसे जवाब नहीं दे रहे थे। और उसी से रिलेटेड यही है, क्योंकि बहुत सारे लोग देख भी रहे होंगे कि जो इमोशन एज अ बॉलर, एज एन स्पोर्ट्समैन आप फील कर रहे होंगे, बिकॉज आप करना चाह रहे थे ओवर, लेकिन ऑब्वियसली इंजरी ऐसी थी और जो डर था आपने बेहतर डिसीजन लिया, बट मस्ट बी वेरी टफ, क्योंकि वर्ल्ड कप फाइनल है और आपने जाना है और टीम के लिए कुछ करना है और आप चाहते हैं, बट अवॉइड कर रहे हैं उस चीज़ को। जी बिल्कुल। आई थिंक जैसे जिस टाइम मैं गिरा हूँ, मुझे उस टाइम लगा कि आई फील कि मेरी नी कट गई है, ऐसे दर्द काफ़ी ज़्यादा हुआ, इवन मुझसे वॉक भी नहीं हो रहा था। तो हारिस मेरे साथ वॉक कर रहा था, वो मुझे बार बार कह रहा था आ जाओ आ जाओ। मैंने कहा आना है, सब्र तो करो, चेक तो करूँ, मुझे लग रहा है कि कुछ कट गया है, कुछ और ख़राब हो गया। इवन मैं फिर गया हूँ और फिजियो डॉक्टर ने जब चेक किया तो मैंने कहा वर्ल्ड कप का फाइनल है और अभी मेरे जाना है और मेरे 2 ओवर ज़रूरी है, तो मुझे टेप कर दे। तो उन्होंने कहा कि स्वेलिंग ज़्यादा बढ़ रही है इस वक्त, और हमें नहीं पता कि और इंजरी आ सकती है, तो आप ना जाएं। तो फिर भी उन्होंने कहा कि आप जाएं। फिर उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन दिया, बट इवन जब मैंने वॉक एक रनिंग किया और एक बॉल किया, फिर कप्तान ने कहा कि नहीं आप अब जाएं, क्योंकि उस टाइम मुझे ऐसा फील हुआ था कि बिल्कुल मेरी नी जवाब नहीं दे रही। तो मेरी यही कोशिश हमेशा रहेगी और रही है कि मैं अपनी टीम के लिए जब तक जान है इस टीम पे कुर्बान है। नहीं बिल्कुल शाहीन, आपके एफर्ट्स सबको नज़र आते हैं, यू प्लेड टिल यू कुड एसेंशियली। अच्छा शादाब, आप पे आ जाते हैं। आज के स्टार परफॉर्मर तो आप ही हैं, हर कोई आपका नाम भी ले रहा है। लास्ट फ्यू मंथ्स में आपकी परफॉर्मेंस भी जो है हैज़ बीन इनक्रेडिबल फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। तो अक्सर ये होता है कि मैच में स्टंप माइक में कभी कभार बातें पिक हो जाती हैं जो आपस में हो रही होती हैं। तो इस दफ़ा हमने इसका एक बहुत इनका शानदार रन आउट भी देखा डेवन कॉनवे का अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तो मुझे याद है लास्ट ईयर बाबर ने एक दफ़ा आपको कहा था कि हुण तू बुढ़ा हो गया है, तेरे से फील्डिंग नहीं हो रही। तो कुछ कहना चाहेंगे बाबर को आप? नहीं, अभी मैंने मैचेस खेल लिया, फिर वो उसको याद आ जाता है दोबारा। अभी तो हमारे सेम ही हो गया, दोनों एक जैसे ही चल रहे हैं। दोनों एक जैसे ही चल रहे हैं। अच्छा, बट फील्डिंग इज़ वन थिंग, हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट जो है आहिस्ता आहिस्ता से इम्प्रूव कर रही है, एंड you've led the fielding in that regard. तो ये बताएं कि पर्सनली इंजॉय करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि बॉलिंग और बैटिंग तो हमने देखी है आपकी, बट फील्डिंग इन पर्टिकुलर, इज दैट समथिंग दैट यू रियली एंजॉय? डेफिनेटली, क्योंकि टीम में लीडर्स होते हैं, जिस तरह हमारे तरह वो बैटिंग के लीडर हैं,
शहीन बॉलिंग का लीडर है, तो मैं कोशिश करता हूँ क्योंकि मैं फील्डिंग का लीडर बनूँ, क्योंकि जब मैं अच्छी फील्डिंग करूँगा तो मोस्ट प्रॉब्ली सारी टीम मुझे देख रही होती है, तो उसके बाद वो उसी तरह एफर्ट करते हैं। और जिस तरह के स्पेशली आजकल की हमारी फील्डिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव इस वजह से हुआ है कि जिस तरह के हमारे फास्ट बॉलर फील्डिंग करते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से दुनिया के बेस्ट फील्डर हैं इस टाइम फास्ट बॉलर, क्योंकि जिस तरह के वो एफर्ट करते हैं, क्योंकि हमने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था कि हमारे फास्ट बॉलर जाके डाइव में मारें। अभी हॉट स्पॉट पे हमारे मोस्ट प्रॉब्ली सारे फास्ट बॉलर ही खड़े होते हैं, तो उस वजह से काफ़ी इम्प्रूव हुई है। तो डेफिनेटली एंजॉय करते हैं, क्योंकि फील्डिंग एक ऐसी चीज़ है कि आपको एंजॉय करना पड़ता है, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपके एक अच्छा एटीट्यूड के साथ अगर आप फील्ड करते हैं तो आपको टीम को हेल्प कर सकते हैं। एज ए बैट्समैन अगर आपसे रन्स नहीं हुए लेकिन आप फील्ड में एक अच्छा कैच, एक अच्छा रन आउट अच्छी सिचुएशन पे किया, तो उससे टीम कम बैक करती है। तो मेरी यही कोशिश होती है कि बैटिंग बॉल में अगर मेरे से परफॉर्म नहीं भी होता, तो क्योंकि एज ए फील्डर मैं टीम को जिताऊँ, एक अच्छा कैच पकड़ूँ, एक अच्छा रन आउट करूँ, तो वही कोशिश करता हूँ। बाबर, आपसे सवाल है, एज कप्तान हमने बहुत सारी बातें की, टीम ऑफ कोर्स यूनाइटेड है, नज़र आ रहा होता है किस तरह से जान लड़ा रहे होते हैं। एज कैप्टन कितना मुश्किल होता है आपके लिए? हमने कुछ वीडियोस देखे आपके ड्रेसिंग रूम के जहाँ मोटिवेट कर रहे हैं टीम को, लेकिन आप खुद एक यंगस्टर हैं। एज कप्तान कितना आसान है या कितना मुश्किल है एक वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में हार के बाद वापस आना है और बिलीव करना है कि हम आ सकते हैं? डिफ़िकल्ट होता है। देखें, जब आप कोई क्रूशल मैच हारते हैं और स्पेशली आप कोई इंडिया के अगेंस्ट क्लोज मैच हारते हैं, तो मेरे ख्याल से वो चीज़ काफ़ी हर्ट करती है। सबको पता होता है कि हम बेहतर कर सकते थे, लेकिन उस टाइम पे आसान होता है कि आप हर प्लेयर को आप वहाँ पे बैठ के उनको बताओ कि आप ये कर सकते थे, या ये वहाँ पे आप उनको डांट भी सकते हैं, डिफरेंट वे में भी लेके जा सकते हैं। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इनको जितना कॉन्फिडेंस दूँ वो उतना टीम के लिए बेहतर है, क्योंकि हर बंदा गिरा होता है, उनको उठाना ज़रूरी होता है, क्योंकि एक मैच से आपकी क्रिकेट ख़त्म नहीं हो जाती, आपकी वहाँ पे ख़त्म नहीं होती, आगे बहुत से मैचेज़ हैं। नया दिन आता है, बुरे दिन गुजर जाते हैं, हर दिन एक जैसा नहीं होता। तो हर दिन कोशिश करता हूँ कि इनको कॉन्फिडेंस दूँ और इनसे परफॉर्मेंसेस लूँ, और कोशिश यही होती है कि इनको जितना मेंटली फ्री रखें, जितना इनको कॉन्फिडेंस देखो। एज अ प्लेयर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, क्योंकि परफॉर्मेंस अप एंड डाउन चलती रहती हैं लाइफ में, लेकिन जितना प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देंगे उतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस प्लेयर देंगे। इनके भी कोई टोटके होते होंगे ना, जैसे हम लोग बैठे होते हैं, मैच चल रहा होता है, उस कुर्सी से नहीं हिलना, आउट हो जाएगा कोई। आपस में ड्रेसिंग रूम में होता है, किसी ड्यूटी लगाई होती है कि हिलने ही लेना? मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि मैं बाहर बैठ के मैच कम ही देखता हूँ क्योंकि मैं अंदर होता हूँ। लेकिन इस बारी माशाल्लाह नहीं होते ना। लेकिन इस बारी जो एक्सपीरियंस हुआ शदाब के साथ, वर्स्ट इसके साथ मैच नहीं दे सकते आप, क्योंकि ये आपके साथ बैठा होगा, इसने 2-3 प्लेयर साथ रखे होने हैं और साथ इसने कहना है यहाँ से हिलना नहीं है, इसने ये शॉट क्यों नहीं मारी, इसने ये क्यों नहीं किया, ये भाग क्यों नहीं सही रहा। तो वो उस पर मैं इसको देख रहा होता हूँ कि यार शदी अंदर डिफरेंट है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस है। नहीं, वो फिर मैंने पहली बार इसका ये देखा कि मुश्किल है, मैं खुद मैच नहीं दे सकता, मैं कभी कभार हाइपर हो जाता हूँ कि यार ये क्यों नहीं किया या वो क्यों नहीं किया। और फिर जब बाद में जब मैं रूम में जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ यार बाहर बैठ के ना बातें आसान है, अंदर डिफरेंट होता है चीज़ें। अच्छा, ये बताएं कि टीम में सबसे ज़्यादा डांट किसको पड़ती है? कहीं देख तो रहे हैं, किसी की तरफ देख रहे हैं? नहीं, बेसिकली सारे हम क्योंकि सारे एक दोस्त हैं और टीममेट्स हैं, और कोशिश करते हैं कि अच्छे तरीके से ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड हर चीज़ अच्छी हो। लेकिन सही कह रहा है शेडी, हर एक की डांट ये खाता है, क्योंकि मोस्टली इसके क्लोज किस चीज़ पे? परफॉर्मेंस में अंदर अगर कोई ढीला नज़र आ रहा हो, क्योंकि ये चीज़ हमने सैफ़ी भाई से सीखी है। क्योंकि हमेशा सैफ़ी भाई जब कप्तान थे तो वो हमें डांटते थे, क्योंकि हमारे जो दो क्लोज होते थे वो कहते थे इसको देख लो, ये क्या कर रहा है, इसकी बॉडी लैंग्वेज देख लो। क्योंकि इमाम की वजह से मैंने बहुत डांट खाई है सैफ़ी भाई से, क्योंकि उन्होंने बहुत क्योंकि वो बॉडी लैंग्वेज और कभी कभार वो मैच में कभी नहीं होता था, वो कभी कोई और घूम रहा था, तो सैफ़ी भाई मुझे कहते थे बाबर इसको देख ले। दोनों कैप्टन की एक कॉमन चीज़ थी, डांटते मुझे थे। फ़हीम था, हसन था, फ़खर भाई, आसिफ भाई, तो जब उनको डांटने की बारी आती थी तो वो पहले मुझे डांटते थे कि पहले उनको जाके समझा के। अब बाबर भी वही काम करता है कि अब किसी को भी डांटना हो पहले मुझे डांटता है कि ये क्या कर रहा है। तो कॉमन यानी चीज़ है। सबका गुस्सा आप पे निकलता है। लेकिन मैं इससे सबसे ज़्यादा
डांट हारिस रऊफ ने खाई है अभी तक। ये अभी सिकंदर आप जाएंगे सवाल पूछने तो उनसे भी इसके ऊपर रिएक्शन लेकिन लेना। उसको अब तरीका आ गया है, क्योंकि उसको पता होता है कि जब उसने बैट बॉल किया ना तो इस बॉल पे मुझे डांट पड़ सकती है, वो खुद ही अपने आप को डांटना शुरू कर देता है। लेकिन बाल खींचता है अपने। मेरा सबसे ज़्यादा प्यार भी उससे है। शाहीन जल्दी से बता दें सबसे ज़्यादा गुस्सा किसको आता है टीम में? अफरीदी को आता है सबसे ज़्यादा। अफरीदी को। लो जी। वैसे एक बात ज़रूर मैं यहाँ कहता चलूँ, हमें भी ऑफ कोर्स हमने वो मोमेंट्स लिव किए हैं। 2022 की बात हो रही है, शाहीन ने जिस तरह से कंसिस्टेंटली नए बॉल के साथ परफॉर्म किया है, इंडिया के अगेंस्ट केएल राहुल की विकेट, उनके कैप्टन की विकेट, डेंजर मैन थे न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल में। आई थिंक ही डिजर्व्स अ राउंड ऑफ अप्लॉज अलोंग विद हारिस रऊफ एंड द बॉलर्स हु पुट देयर हार्ट आउट, स्पेशली इन द फाइनल। द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड टू यू बाबर, और आई शुड से कि बाबर रिजवान के बगैर कैसा फील करते हैं? बिल्कुल, जिस तरह मेरे ख्याल से रिजवान ने अपनी गेम इम्प्रूव की है और जिस तरह वो डोमिनेट करते हैं T20 में और वो वनडे में हो या टेस्ट मैच में हो, तो मेरी और रिजवान की तो पहले कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छी है और बिलीव बड़ा अच्छा है। और रिजवान की एक बात हमेशा मुझे जाने से पहले यही होता है कि जो होता है अल्लाह की तरफ से होता है, उसके बाद कुछ नहीं होता। तो हमेशा उस बंदे ने मुझे जाने से पहले ये बात बोली है और हमेशा जब बड़ा टारगेट होता था उसने मुझे यही बोला है कि हम दोनों ही फिनिश करके आएंगे अल्लाह के हुक्म से। जब हम स्टार्ट करते हैं कि सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं और कोशिश करते हैं कि कौन ज़्यादा अच्छा खेल रहा है उस टाइम, हीट ऑफ द मोमेंट। चले, रिजवान के बारे में इन्होंने बताया तो आप जाके रिजवान से भी ज़रा पता करें ना उनका क्या ख्याल है अबाउट दिस पार्टनरशिप दैट दे हैव। एंड देयर आर फ्यू अदर प्लेयर्स सिटिंग एज वेल। सिकंदर, मेरा ख्याल है जाके चूज करें किससे बात करनी है। रिजवान के पास जाओ। रिजवान से पहले स्टार्ट करते हैं क्योंकि बाबर ने उनकी इतनी तवील जो है डिस्कशन की है। अमीर साहब आ रहे हैं। रिजवान आपके ऑफ कोर्स है तो सारे ही आपके साथी जितने भी प्लेयर्स हैं, लेकिन आपके एक ख़ास रिश्ता है बाबर से। बाबर ने आपके बारे में बात की, हमें बताएं कि क्या फॉर्मूला है आप दोनों का, जो हम कहते हैं कि ये दोनों चलते हैं तो फिर तो सब सेट है। सबसे पहले तो उसको शादी के लिए मैं राज़ी नहीं कर रहा कि जोड़ी टूट ना जाए अमीर उसकी। देखिए जी, जैसे कप्तान ने कह दिया कि बिलीव की बात होती है और सबसे ज़्यादा उस टाइम हमें कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है कि जब कोई टारगेट बोर्ड पे लगता है तो एज ए बैट्समैन अगर आप कोई लेजेंड्स होते हैं उनसे पूछ ले, क्योंकि एक स्टेजेस आते हैं कि जिसमें डिफ़िकल्ट होती है। क्योंकि जब भी लाइफ में सिर्फ क्रिकेट के अलावा भी अगर आप कोई अचीवमेंट करते हैं तो जहाँ पे अचीवमेंट के करीब पहुँचते तो वहाँ इम्तिहानात बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब इंसान के जहन में एक टारगेट अचीव करना होता है, अगर आप देख लें अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उसके दरमियान 100 के पार्टनरशिप ज़्यादा है, तो जहन में ये नहीं रहा कि 100 का है, मगर मेरे कप्तान आपस में जो सारी बातें उसने कह दी है, मगर हमारा एक एम होता है कि आने वाले बैट्समैन के लिए आसानी की जाए। इसी तरह परफॉर्म करते रहें, इसी तरह पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करें, पाकिस्तान को मैचेस जिताएं। थैंक यू वेरी मच। सिकंदर, मेरा ख्याल से आप क्योंकि हारिस रऊफ का नाम लिया सबने कि उनको बहुत डांट पड़ती है, तो ज़रा उनसे भी जाके पूछें कि क्यों उनको इतनी डांट पड़ती है। क्या वजह है हारिस भाई? मैं तो नहीं बिलीव करता इस बात पे, लेकिन अगर आपके कप्तान क्यों कह रहे हैं? देखें, डांट तो जिस तरह घर से स्टार्ट हुई थी पहले, बचपन में अम्मी अबू ने डांटते रहे, फिर स्कूल में गया तो टीचर्स डांटते रहे, अभी क्रिकेट में आया तो कप्तान साहब डांटते हैं। तो ये मेरा ख्याल है डांट आपके लिए ज़रूरी है, वो आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। हारिस खड़े हो जाओ। उन्होंने काफ़ी कुछ शाहीन कुछ पूछना चाहता है, उस वक्त से मुझे कह रहा है इसको यहाँ बुलाओ, तो इसी तरह हाँ कुछ बुलाना चाह रहे हैं आपको। मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है यहाँ पे। शाहीन, क्या पूछना चाहते हैं आप इनसे? अब बताएं। हाँ, बता रहा था कि डांट ज़रूरी होती है आपके लिए, मेरे ख्याल से वो आगे आपको बढ़ने के लिए मदद करती है। और जिस तरह स्टार्ट बचपन से हुई डांट और अभी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँचे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँचे हैं, और कोशिश यही करते हैं कि जितनी मिस्टेक्स से लर्न करें। और जिस तरह कप्तान स्पोर्ट कर रहे होते हैं, गलती करते हैं, बट उनकी जो स्टिल स्पोर्ट होती है वो कॉन्फिडेंस देती है। तो ये अभी रिजवान कह रहे थे कि इनको राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं कप्तान को शादी के लिए, तो इनको बिजी करवा दें, डांटे वाटेंगे कि नहीं, इनको राज़ी करें, इनको कुछ वो हम चाह रहे हैं कि इसको भी पता चले कि कैसा फील होता है। हमने देखा था फाइनल में, यू ऑब्वियसली ज़बरदस्त हमारा पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक है, बट नसीम शाह को आपने जाके नज़र आ रहा था कि कोई टिप्स दे रहे थे या कोई डिस्कशन कर रहे थे, क्या उस वक्त डिस्कशन हो क्या रही थी? मैंने ये कोशिश की कि डॉट्स बॉल पे जाए और जितने डॉट्स बॉल करेगा
तो उसको उस टीम को फ़ायदा होगा उससे, और वो उसने माशाल्लाह जिस तरह बॉलिंग की और काफ़ी उससे टीम जिस तरह उन पर अंडर प्रेशर की इंग्लैंड की टीम, और यही बात उससे बात की थी। नसीम शाह का तो मुझे तो उनके वो 2 छक्के जो उन्होंने मारे ना, वो मुझे याद रह गए शारजा में, ज़बरदस्त। आई थिंक दैट इज़ द स्पिरिट, दैट इज़ अ फाइट। आई थिंक उसमें तो आई थिंक रिजवान भी हैरान हो गए थे, देख रहे थे कि इतनी क्लीन हिट्स थी वो। आई थिंक सुपर परफॉर्मेंस। आई थिंक एक प्लेयर से मैं और बात करता हूँ एंड देन विल हैव अ यादगार फोटो आल्सो विद एवरीबॉडी। सो नवाज से भी बात करनी चाहिए आपको। नवाज है कहाँ? नवाज ओवरऑल ऑफ कोर्स आपको बड़ी बड़ी मैचेस में क्रूशल मोमेंट्स पे जो आपको ड्यूटीज़ दी गई और आपने निभाई भी हैं। ऑफ कोर्स एक अच्छा दिन होता है, एक बैड डे होता है, बट एज अ क्रिकेटर आपने ये प्रूव किया अगले मैच में कि देन यू कम बैक एंड यू कम बैक स्ट्रॉन्ग। बट एज आप किस तरह से डील करते हैं इन सारे प्रेशर्स को और किस तरह से मूव फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स आंखें लगी हुई होती हैं कप्तान की भी, पूरी कंट्री की भी। गुड इवनिंग एवरीवन। आई थिंक ऐसी सिचुएशन में जो है काफ़ी बार पिछले लास्ट साल से जो है बारी आ चुकी है, चाहे वो बॉलिंग हो या बैटिंग हो, तो मेरा एक रोल है जो टीम मुझे रोल देती है, अगर काउंटर करना होता है, जैसे स्पिनर हो गया, लेफ्ट आर्म स्पिनर, तो मुझे बैटिंग के लिए भेज दिया। तो कोशिश यही होती है कि जो भी मुझे रोल दिया गया है उसको मैं अपने आप को बैक करूं उसके लिए, और वैसे भी अब तो मेरा नाम जो है वो हंगामी प्लेयर डल गया है, तो मैं हंगामी प्लेयर हूँ। हाँ नहीं, 2-3 ऐसे प्लेयर हैं हंगामी प्लेयर्स जिनको जाना पड़ता है। मुझे याद है इफ्तिखार भी कहते हैं कि यार आखिरी के 5-6 रन, कितने रन इफ्तिखार को बनाने पड़ते हैं एंड में जाके जो वो नाराज़ होता है। अक्सर हमें गालियाँ देता है वो कि यार हमें छोड़ देते हो आखिर में, ये तो फिनिश करो हमेशा। वो इसके वाकई भी काफ़ी मशहूर है। Thank you to all of you as well. All the national team players as well for a group photo. Let's have a big round of applause for all the players. सब इकट्ठे हुए हैं स्टेज पे, and obviously all the dignitaries, officials.